guys, welcome back to Zeta Institute of Science, and here I am here to teach you all chemistry. With gas. So why we are studying this law? क्या ज़रूरत है हमें इस चीज़ को स्टडी करने के लिए? Students, you have already seen that in gases we are mostly concerned with the pressure, we are mostly concerned with the volume, we are concerned with the temperature, we are concerned with the number of moles. Only these four quantities we are concerned with, right? So the thing is, why we are concerned with this? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड नंबर ऑफ मोल्स से ही हमें गैस के रिलेटेड पता चलता है कि कितना प्रेशर अप्लाई करना है, वॉल्यूम कितना है. सो बेसिकली हम गैस लॉ में चेक करेंगे कि इन चारों के बीच में कौन सा रिलेशन, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल का रिलेशन है या फिर इनवर्स प्रोपोर्शनल का रिलेशन. सो कंसिडरिंग दिस फोर टर्म्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द गैस लॉ. Basically, I said you that we are going to study with the 5 laws. Those 5 laws are, first we are going to start with Boyle's law, then Charles' law, then Gay-Lussac's law, then we are going to start with Avogadro's number or Avogadro's law, and then the last we are going to study with the Dalton's law. So, one by one we will check with the laws, their relation with some of the quantities among these four, what it is. Okay? Starting with the very first law, that is Boyle's law. In this Boyle's law, we are going to study with the relationship of pressure and volume. So basically we are going to concern with the pressure-volume relationship. In this law, T, that is temperature, is constant. N, that is number of moles, is constant. When T and N are kept constant, that time P, that is pressure, is indirectly proportional to volume. That means अगर हमने प्रेशर बढ़ाया तो वॉल्यूम डिक्रीज होगा, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करना है तो प्रेशर बढ़ेगा, राइट? सो बेसिकली अगर देखेंगे तो यू कैन सी विथ P इंक्रीज होगा तो V क्या होगा? डिक्रीज. ओके? एंड व्हेन प्रेशर डिक्रीजेस वॉल्यूम increases. Okay? So basically in this Boyle's law, pressure and volume are inversely proportional. तो vice versa case होता है. Statement for this law is at constant temperature and at constant number of moles. Okay? So at constant temperature and number of moles, the pressure of a fixed amount of gas varies or is inversely proportional to the volume. So जो मैंने बोर्ड पे कंटेंट लिखा है उसी को देख के आप लॉ का स्टेटमेंट बना सकते हो. एट कांस्टेंट टेम्परेचर प्रेशर ऑफ गैस is inversely proportional to volume of gas. Simple statement. I'm repeating the statement, just listen it carefully. At constant temperature, pressure of a gas is inversely proportional to volume of a gas. Okay? Now, let's see how प्रेशर वॉल्यूम से का रिलेशन हमने चेक कर लिया बॉयल्स लॉ. अब ये प्रोपोर्शनलिटी जो साइन है उसको भी तो रिमूव करना पड़ेगा. सो बेसिकली व्हेन वी आर रिमूविंग दिस साइन, दैट टाइम वी इंट्रोड्यूस अ कांस्टेंट कॉल्ड एज k. लेट्स नेम दिस कांस्टेंट k एज k and 1 upon v as it is. Okay? ये कांस्टेंट है k1. सो दिस कांस्टेंट इज यू कैन से एज बॉयल्स कांस्टेंट, बॉयल कांस्टेंट k. ओके?
Now you can see that P और V मल्टीप्लीकेट, ये ऊपर है ये डिविजन में, तो I can do this कि मैं ये V को यहाँ पे P के साथ ले जाऊँ, तो PV is equals to K1, right? So pressure and volume is equals to constant, है ना? pressure into volume equal to constant, ये आया. So अब देखो, हम इस प्रेशर को P1 बोलते हैं, एक प्रेशर लेते हैं, उसके साथ जो वॉल्यूम होगा वो V1 लेते हैं. तो ये कांस्टेंट की जगह अगर हम P2 V2 एंड सो नंबर्स ऑफ, जितने भी n नंबर्स ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम लेते हैं, Pn Vn, तो ये सारी चीजें क्या है, एक दूसरे को कांस्टेंट है. ठीक है? सो प्रेशर P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2. अगर कोई थर्ड प्रेशर दिया है तो P इक्वल टू P3 V3. वैसे करके हम वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं. सो बॉयल्स लॉ में क्या है, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 विच इज कांस्टेंट. सो दिस इज बॉयल्स लॉ. एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, pressure of a gas is inversely proportional to volume, that is P is inversely proportional to 1 upon V. P is equals to K 1 upon KV, K upon V, ऐसे भी बोल सकते हो ना. So K is the proportionality constant, so PV is equals to K. Therefore P1 V1 is equals to P2 V2 till Pn Vn, which is equals to constant. Okay, so this is Boyle's law. Let's start with the second law, that is Charles' law. Basically this law studies the relationship between temperature and volume. So क्या होता है इस law में, देखो, in this law जो P है, pressure है हमारा, वो constant होता है. When the pressure is constant, that time volume is directly proportional to temperature. ओके, सो इस लॉ का स्टेटमेंट सिंपल है. एट अ कांस्टेंट प्रेशर, वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर. ओके, सो एट कांस्टेंट pressure, the volume of a gas is directly proportional to temperature. So as we have discussed in the last part only that ये proportionality sign remove करनी होती है. So proportionality remove करते वक्त एक constant आता है, this constant is K. So I am naming it as K2 because ये हमारा second law है, इसलिए मैं इसको K2 दे दूँ. K भी दिया, it's okay, no problem, no issue. So V is equals to K2T. Okay, constant into T. So ये दोनों यहाँ पे इक्वल में है, तो मैं ये टेम्परेचर को यहाँ पे ले लूँ. तो what will happen, V upon T is equals to constant. Okay, now considering two values, V1 T1 as the first value, V2 T2 as a second value, we know that volume temperature can be till n numbers. So what happens, V1 upon T1 is equals to V2 upon T2 which is equals to constant. अगर हमें कोई दो वैल्यू इनमें से V1 T1 is equals to V2 T2, अगर इस पूरे वैल्यू में अगर हमको एक वैल्यू फाइंड करनी होगी तो इजीली हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करके वैल्यू फाइंड कर सकते. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल चेक विद एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम, दैट इज T0 V0. एक्चुअली होता क्या है वो अब हम स्टडी करते हैं. एब्सोल्यूट टेम्परेचर नथिंग, मतलब एग्जैक्ट टेम्परेचर वैल्यू क्या होती है, तो TC मीन्स TC यहाँ पे जो है वो सेल्सियस में, टेम्परेचर इन सेल्सियस व्हेन वी कंसिडर इट, तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस. एंड T0 इज वी डिनोट फॉर एक्चुअली टेम्परेचर जो भी है स्टैंडर्ड वैल्यू केल्विन के थ्रू लेते हैं हम. सो T0 मीन्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन इज 273.15 degree Kelvin. Okay, so VT and TT here
आर द नॉर्मल टेम्परेचर, जो भी आपको टेम्परेचर दिया होगा डिग्री सेल्सियस में अगर दिया है तो उसमें 273.15 हम ऐड कर सकते हैं, नो इशू. सो ये कोई भी जो हमें दिया हुआ होगा, एंड दिस इज द स्टैंडर्ड वॉल्यूम एंड स्टैंडर्ड टेम्परेचर, दैट टू इन standard form. Okay, now what actually this absolute zero temperature tell us, that it is just starting of it. टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट हुआ, तो केल्विन्स के टाइम पे टेम्परेचर राइज करना स्टार्ट होता है 273.155 डिग्री केल्विन से. ओके, नाउ टेलिंग अबाउट ओवरऑल चार्ल्स लॉ, तो चार्ल्स लॉ हमें ये भी बताता है कि जब कांस्टेंट प्रेशर होता है, बेसिकली हम इसमें टेम्परेचर वॉल्यूम रिलेशन देखते हैं, तो इसमें हमारा टेम्परेचर जो हमारा प्रेशर है वो ऑलरेडी कांस्टेंट होता है. तो जब कांस्टेंट प्रेशर होता है तो गैस एक्सपांड कैसे होती है, जब हम उसको गैस को हीट अप्लाई करते हैं, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो हमारा गैस जो है वो एक्सपांड होता है. और जब हमारा टेम्परेचर हम कम करते जाएंगे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर की तरफ जाते जाएंगे, तो हमारा ये जो गैस है वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होगा, मतलब छोटा होता जाएगा, उसका जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो जाएगा. ओके, start with the third law, that is Gay-Lussac's law. This law states the relationship between pressure and temperature. Okay, so what is the actual definition of this? Let's start with that. Okay, it says that in this law volume V is equals to constant, so the pressure of a certain fixed amount of gas is directly proportional to the temperature applied. Okay, so P is directly proportional to T. To remove this proportionality, we introduce a constant K, naming this as K3 because it is the third gas law. So P is equals to K3T. Therefore, I will take this T downside. It will become P upon T is equals to K, which is constant. So, if I have number of gases, suppose P1, P2 pressure applied to a gas, T1, T2 temperature applied to it, then the formula comes as P1 upon T1 is equals to P2 upon T2, which is equals to constant. So if अगर second pressure find करना हो तो we can mix matches, multiply divide करके हम sums find कर सकते हैं, right? Value find कर सकते हैं actually. T1 अगर फाइंड करना है तो P1 को साइड शिफ्ट करेंगे, T1 को साइड शिफ्ट करेंगे, ये वैल्यूज यहाँ पे शिफ्ट करेंगे, एनीथिंग वाइस वर्सा मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके हमें आंसर मिल जाए. स्टेटमेंट फॉर दिस गैस लॉ इज एट कांस्टेंट वॉल्यूम pressure of a fixed amount of a gas is directly proportional to the temperature applied it. And this temperature is absolute temperature. Means it should be in degree Kelvin, not in degree Celsius. Okay? So students, let's move to the third gas law, that is Avogadro's law, which states as the relation between volume amount relationship. Something new, pressure, temperature, ऐसे दो वर्ड सुने होंगे, बट ये वॉल्यूम अमाउंट रिलेशनशिप क्या है? So we will check with that. In this, the statement for this law is equal volume of all gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules. Means what? See students, same temperature and pressure means T and P is equals to constant. Okay? Equal volumes. So, I'm re-repeating the sentence of this law or statement of this law. Equal volumes of all gases at same temperature and pressure contains equal number of molecules. So, for number of molecules, what we denote? N, right? So, N
So V is directly proportional to N by the statement. Okay. Now, like we are doing from starting only, that to remove this proportionality, we are introducing a constant, naming this constant as K4 because it is the fourth law. V is equals to K4N. Okay, where V is the volume of the gas, N is the number of moles or molecules present in the certain gas. कोई भी certain amount का gas ले लो, उसमें जो भी molecules present होगा वो. So V is equals to K4N. Again, V upon N is equals to K4. This K4 is again a constant. So अगर मेरे पास दो टाइप के वॉल्यूम्स है, दो टाइप के नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, मीन्स एक मॉलिक्यूल में इतने इतने नंबर्स है, दूसरे मॉलिक्यूल में इतने इतने नंबर्स है, तो हाउ वी विल चेक विथ इट? V1N1 is equals to V2N2. Okay? Are you clear with this? Now, this was about the statement of Avogadro's law and the mathematical representation of Avogadro's law. Now we are going to check what is actually molar volume, what is actually STP condition, and relation between molar mass and density of a gas. Then what actually is an ideal gas and what is the equation for ideal gas. Okay, and in ideal gas we will come to with a new point, that is R, which is a gas constant. So we will also check what are the different values for R. Okay, so basically Avogadro's law छोटा मोटा लॉ नहीं है, बहुत बड़ा लॉ है. इसमें 2-3 डेरिवेशंस है जो इम्पोर्टेंट है. ओके, so let's check with them. Let's check what is actually 1 mole of a gas contains. So 1 mole of a gas contains how much Avogadro number? मतलब Avogadro का कितना molecules को cover करता है. So 1 mole of a gas is equals to 6.022 into 10 to the power 23 molecules of Avogadro number, that is Na. Na is the denotation for the Avogadro's law, and it also tells us the molecules. So अगर 1 mole of gas हम लेते हैं कहीं पे भी, तो एवोगाड्रो के लॉ के वाइज या फिर एवोगाड्रो नंबरिंग में वो गैस का मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा? 6.022 into 10 to the power 23 molecules. Okay, so this is 1 mole of gas contains this much number of Avogadro number. Okay, but at STP, okay students, how much volume of a gas is occupied? मतलब molar volume क्या है Avogadro के वाइज? So molar volume of a gas ये फिक्स वैल्यू होता है. बेसिकली वी आर डीलिंग विद गैस, तो हम गैस ही कंसिडर करेंगे. इज इक्वल्स टू 22.414 liter mole inverse. Wait a moment. Mole inverse, that means liter upon mole. Okay, so at STP the molar volume of a gas is equals to 22.414
लीटर पर मोल इनवर्स। लीटर पर मोल इनवर्स मतलब ये वैल्यू कैसे होगी, एल ऊपर होगा, मोल नीचे होगा। ओके, सो ये हो गया मोलर वॉल्यूम। नाउ स्टूडेंट्स, यू वुड हैव अ क्वेश्चन दैट व्हाट इज एसटीपी, राइट? एसटीपी मतलब स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। What S stands for is standard, T stands for temperature and P stands for pressure. Okay? So pressure, वॉल्यूम का जो भी है STP वैल्यूज होते हैं वही हम कंसिडर करते हैं। बेसिकली केमिस्ट्री में हम जो भी वैल्यूज कंसिडर करते हैं, अगर वो कोई कार्बन रिलेटेड चीजें होंगी तो हम IUPAC नेमिंग फॉलो करते हैं। वैसे ही अगर वॉल्यूम, टेम्परेचर, कोई भी क्वांटिटी मेजर करनी है किसी भी स्टेट ऑफ मैटर की, तो वी गो विथ STP मेथड, दैट इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर मेथड। ओके, सो उस मेथड वाइज वॉल्यूम इतना आता है। ओके, देखो इक्वेशन 4 क्या था हमारा, कैपिटल M इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, फोर्थ कांस्टेंट एंड D, राइट? ये था हमारा इक्वेशन 4। नाउ स्टूडेंट्स, हमें पता है कि अगर कांस्टेंट ऐसे, कांस्टेंट के बाद डायरेक्ट नंबर है, इनवर्स में नहीं, अपॉन में नहीं, तो हम डायरेक्टली इस इक्वेशन को देख के ऐसे बोल सकते हैं M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D। अगर मैं ऐसे बोल रही हूं तो अगर आप लोगों को क्वेश्चन आया है कि फिर कांस्टेंट डालने के बाद हम ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो स्टूडेंट्स आपके लिए मैं एक चीज सिंप्लीफाई करती हूँ। मैं इसको ऐसे भी लिखती हूँ, विच वन इज, एंड मैं इसको ऐसे भी लिख देती हूँ, M इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल अपॉन 1 अपॉन D। अब मुझे चेक करना है कि कौन सा प्रोपोर्शनैलिटी है, अगर कि डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शनल है, तो क्या कैसे मेरे को पता चलेगा। देखो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करने के लिए हम एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं, लाइक दिस, M इज इक्वल्स टू KD आ जाएगा। इस केस में अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करते हुए एक कांस्टेंट डालेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, राइट? सो दिस वन इज नॉट मैचिंग विथ आवर इक्वेशन 4। इनवर्स प्रोपोर्शन मैचिंग नहीं हो रहा, डायरेक्ट प्रोपोर्शन का सिंबॉलिक सेम आ रहा है, यू कैन सी, राइट? सो इस वे में मैं जज कर सकती हूँ कि मेरा जो मोलार मास है, मोलार मास, वो डेंसिटी के साथ क्या रिलेशन रखता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का। कौन सा रिलेशन रखता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी का। ओके, M is directly proportional to D, we conclude that the relation between molar mass and density is the direct proportionality. So we can, हमने डायरेक्टली कंक्लूड कर लिया। तो अगर आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए आता है, तो फर्स्ट यू आर गोइंग टू राइट विद द हेडिंग, व्हाट इज द हेडिंग, रिलेशन बिटवीन मोलार मास एंड डेंसिटी। देन यू विल शो दैट मोलार मास का सिंबल क्या है, कैपिटल M, डेंसिटी का सिंबल है T। देन यू कैन राइट विद द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी, दैट इज मास अपॉन वॉल्यूम। उसके बाद हमने जो स्टेप्स किए, सेम स्टेप्स, सब्स्टिट्यूशन करना है, इंटरचेंज करो, सब्स्टिट्यूट करो, एंड डायरेक्टली आप लोगों को आंसर मिल जाएगा दैट मोलार मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू D, दैट इज डेंसिटी। ओके स्टूडेंट्स, चेक विद द आइडियल गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या होता है एंड इसका डेरिवेशन क्या है। ओके स्टूडेंट्स, आइडियल गैस इक्वेशन इज अ इक्वेशन विच फॉलोज 3 टाइप्स ऑफ लॉज। हमने स्टूडेंट्स कौन से 3 लॉज स्टडी किए हैं, which laws we have studied? Can anyone tell me? Yes students, we have studied with the Charles law, Boyle's law and Avogadro law. Okay, हमने 3 ये लॉ स्टडी किए हैं, नॉट कंसिडरिंग Gay-Lussac's law, बट हम Boyle's law, Charles law एंड एवोगाड्रो लॉ कंसिडर करेंगे। ये तीनों गैस लॉज को हम कंसिडर करेंगे और हमारा एक इक्वेशन बनाएंगे।
तो ये प्रैक्टिकल बेसिस पे होता है। कुछ कुछ गैसेस जो होते हैं वो आइडियली बिहेव करते हैं एंड ये तीनों लॉ फॉलो करते हैं, इसकी वजह से उनको आइडियल गैस बोलते हैं, आइडियल लॉ ओबेड गैसेस बोल सकते हैं। सो बॉयल्स लॉ क्या है स्टूडेंट्स? इन बॉयल्स लॉ व्हाट इज द कांस्टेंट? अच्छा ठीक है, तीनों गैसेस में कांस्टेंट क्या है वो चेक कर लेते हैं और तीनों गैसेस का फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। इसमें कांस्टेंट है, इफ वी टॉक अबाउट द कांस्टेंट्स for these laws, you can see that T and N are constant in Boyle's law. For Charles' law, P and N are constant, and for Avogadro's law, T and P are constant, right? What are the formula for it? या फिर क्या है उनका? So in this case, Boyle's law, volume is inversely proportional to प्रेशर, राइट? वॉल्यूम जो है वो प्रेशर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, याद है कि नहीं? इन चार्ल्स लॉ व्हाट इज द केस? V is directly proportional to T, and for Avogadro's law, V is directly proportional to N. Right, students? इतना याद है आप लोगों को? इतना याद होगा? अब चेक करो मैं क्या कर रही हूँ। इसको मैं इक्वेशन 1 दे रही हूँ, this I am noting it as 2 and this as equation 3. Okay? अब मैं इनका एक डेरिवेशन बनाऊंगी। ये आइडियल गैस में मैंने तीनों लॉज ले लिए। अब तीनों लॉज का मैं के इक्वेशंस को या फिर जो भी डेरिवेशंस है उसको मैंने नंबरिंग दे दी 1, 2 and 3. नाउ आई एम चेकिंग विद द डेरिवेशन। सो लेट्स चेक विद द डेरिवेशन ऑफ आइडियल गैस। ये तीनों लॉ है तो डेरिवेशन चेक करते क्या है। इज द बोर्ड क्लियर, राइट? सो ये तीनों डेरिवेशंस है तो देख सकते हो V V V तीनों साइड है, तो मैं क्या करूंगी ये तीनों को मिक्स कर दूंगी। तो क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड को, लेफ्ट हैंड साइड में जो भी कंटेंट है मैं वो एक साइड लिख दूंगी, राइट हैंड साइड में जो कंटेंट है वो वैसे लिख दूंगा, बीच में जो हमारा होगा वो प्रोपोर्शनैलिटी साइन होगा। सो लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप चेक करोगे तो तीनों साइड V है, तो V, अब V किसके साथ प्रोपोर्शनल है चेक करो, 1/P। सो 1/P, T एंड मल्टीप्लीकेशन में है तो वो ऐसे चले जाएंगे, राइट? ऐसे जाएगा तो कुछ इक्वेशन ऐसे हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Tn/P, राइट? नाउ अगेन हमारा वही वाला लॉजिक, इसको हम इक्वेशन पहले 4 देते हैं, इतना कॉपी कर लो आप। अब हमेशा की तरह हम हमारा फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी रिमूव करना है। अब आप लोग बोलोगे फिर से हम के लेंगे, नो। जब हम आइडियल गैस में प्रोपोर्शनैलिटी सिंबल रिमूव करते हैं तो हमारे पास एक न्यू कांस्टेंट आता है, दैट इज R. This R is called as gas constant. आफ्टर ऑल आइडियल गैस इक्वेशन कर रहे हैं तो कहीं तो गैस रिलेटेड एक टर्म आना चाहिए। सो दिस इज R विच इज कॉल्ड एज गैस कांस्टेंट। तो कुछ फॉर्मूला ऐसे दिख रहा है इक्वेशन 5 में। इक्वेशन 6 में अगर मैं इसको मिसमैच करती हूँ तो ये ऐसे हो जाएगा, P को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगी क्योंकि मुझे सारे मल्टीप्लीकेशन में चाहिए, इसलिए व्हाट आई विल डू इज P इंटू V इज इक्वल्स टू NRT। थोड़ा इजी में जाएंगे, ऐसे भी लिख सकते हो या फिर RNT भी लिख सकते हो, वो आपके ऊपर है, बट आई प्रिफर टू राइट इन दिस मेथड। ये P इधर शिफ्ट होगा ही होगा, ये PV तो आने ही वाला है, बट ये चीज का अरेंजमेंट आप अपने कन्वीनियंट के हिसाब से कर सकते हो। दिस आई एम नेमिंग एज इक्वेशन 6
My equation 6 is the derivation of ideal gas, or this is the equation of ideal gas. PV is equals to nRT, where P is the pressure of gas, V is the volume of gas, N is equals to number of moles, R is equals to gas constant and T is the temperature. and ये सारी quantities हम STP पे लेते हैं, मीन स्टैंडर्ड वैल्यूज पे ही लेंगे. Now this गैस कांस्टेंट इज यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, तो इसकी जो भी वैल्यू होती है वो सेम होती है. तो आप ये इक्वेशन कॉपी कर लो, उसके बाद हम चेक करेंगे वैल्यू क्या होती है आर की. डिफरेंट यूनिट्स में हम आर को क्या वैल्यू देते हैं. ओके, द वैल्यू ऑफ आर इन डिफरेंट यूनिट्स. फर्स्ट वी आर गोइंग टू चेक द वैल्यू ऑफ आर इन एसआई यूनिट, बिकॉज हम एसआई ज्यादा प्रेफर करते हैं, राइट. सो इंडियन स्टैंडर्ड यूनिट के साइड से चेक करते हैं. इन एसआई यूनिट, सो ये यूनिट में जो वैल्यू होगी वो जूल्स के टर्म पे होगी. ओके, सो इन टर्म्स ऑफ जूल्स इफ हम चेक करेंगे तो PV इज इक्वल्स टू nRT हमारा फॉर्मूला था. इसी को टैगलाइन लेंगे हम, PV इज इक्वल्स टू nRT, राइट. तो अब उस इक्वेशन को अगर हम अरेंज करेंगे तो R इज इक्वल्स टू PV अपॉन NT, राइट. सिर्फ आर को एक साइड रख दो, बाकी चीजों को डिफरेंट साइड पे. प्रेशर को एक फिक्स वैल्यू बताई थी मैंने आप लोगों को, दैट इज 10⁵ PA, दैट इज पास्कल. वॉल्यूम इज 22.414 लीटर मोल इनवर्स, राइट. नंबर ऑफ मोल्स को हम जनरली 1 मोल ही लेते हैं क्योंकि हम एवोगाड्रोस में चेक करेंगे. टेम्परेचर इन डिग्री केल्विन इज द बेसिक 273.15 केल्विन, राइट. तो अगर इनका हम मल्टीप्लीकेशन या फिर लॉग मेथड से आंसर निकालेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 8314, दैट इज 8314, sorry, 8.314 joule. K inverse is my Kelvin inverse and mole inverse. Okay, so this is my answer. For SI unit in R means rate of gas constant, we generally use this value. तो ये फिक्स वैल्यू है, तो हम जब भी इक्वेशन सॉल्व करेंगे हम आर की ये वैल्यू लेंगे. R इज इक्वल्स टू 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स. ओके, we are checking the value of R in liter atmosphere. In liter atmosphere. So इसमें अगर हम लेंगे तो सेम फॉर्मूला R is equals to PV upon NT, where I am again substituting. प्रेशर कितना होगा 1 atm, एटमॉस्फेरिक में लेंगे ना इसलिए. वॉल्यूम सेम 22.414 मोल इनवर्स लीटर, राइट, अपॉन 1 मोल into 273.15 केल्विन, राइट. सो अगर हम इसका फिर से मिक्स मैच करेंगे, मीन्स वैल्यूज निकालेंगे, डिविजन मल्टीप्लिकेशन करके आप निकाल सकते हो वैल्यू, या फिर लॉग मेथड, लॉगरिथम मेथड से भी आप इसका निकाल सकते हो. सो आंसर जब आप निकालोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.082 ये लीटर वैसे ही आ जाएगा. मोल इनवर्स, तो हम लीटर को यहाँ पे आप चेक करना, पहले हम ये लिख लेते हैं प्रेशर का, दैट इज ATM
केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स, वैसे ही आया। अब मैंने आप लोगों को बताया था कि लीटर्स कैसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। लीटर को हम डीएम क्यूब भी लिख सकते हैं, तो R इज इक्वल्स टू 0.0821 डीएम क्यूब ATM केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ये हो गया लीटर एटमॉस्फेयर के टर्म में आपकी R की वैल्यू। ओके, सो समटाइम्स वाइल जब आपके स्टैंडर्ड वैल्यूज ना हो प्रेशर वगैरह के, तो आप ऐसे आंसर्स बता सकते हो, तो उस टाइम जो आप R लोगे वो ये होगा। ओके, नाउ चेकिंग द थर्ड टाइप ऑफ वैल्यू ऑफ R. ओके, R वैल्यू इज R इन कैलोरीज। कैलोरीज सुना होगा आप लोगों ने, मे बी कैलोरीज स्टूडेंट्स बायोलॉजी में सुना होगा जो बायो स्टूडेंट्स है, या फिर ऐसे भी सुना कैलोरीज बढ़ गई, कैलोरीज डिक्रीज करो, एडवर्टाइजमेंट पे सुना होगा, राइट। वी आर नॉट कंसर्न विद इट, वी आर जस्ट कंसर्न विद कि कैलोरीज के टर्म में हमारे आर की वैल्यू क्या आएगी। ओके, तो हम वो कैलोरी बर्न अप वगैरह में नहीं जाएंगे। लेट्स चेक सेम फॉर्मूला, आर इज इक्वल्स टू पीवी अपॉन एनटी। अगेन अब देखो 1 कैलोरी कितना होता है, किसी को पता है 1 कैलोरी कितना होता है? 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.184 जूल। ओके, नाउ हमने चेक किया है कि ये जो प्रेशर एंड वॉल्यूम होता है या फिर ये जो भी वैल्यूज होती है, तो पीवी अपॉन एनटी को हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे, ऐसा यूनिट क्या है आर का, अभी जस्ट चेक किया ना स्टूडेंट्स। SI unit of R is 8.314, right? मैंने बताया कि 1 कैलोरी इज 4.184। मैंने क्या किया, R का जो भी ये है R का वैल्यू SI के टर्म्स में वो डायरेक्टली यहाँ पे लिख दिया एंड उसको 1 कैलोरी से डिवाइड कर दिया। कुछ इसमें दूसरा कुछ प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर की डिफरेंट वैल्यूज नहीं ले रही हूँ मैं, यहाँ पे मैं डायरेक्टली R की SI यूनिट वैल्यू ले रही हूँ और उसको 1 कैलोरी से डिवाइड कर। जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो आई विल गेट द आंसर लाइक 1.987 which is nearly equals to 2 calories। इसमें हमारा 8.314 में हमारा यूनिट क्या था, जूल, के इनवर्स, मोल इनवर्स एंड ये था कैलोरी कैलोरी, राइट, ऐसे था। तो ये कैसे हो जाएगा, 2 कैलोरी के इनवर्स मोल इनवर्स जूल हट जाएगा, क्योंकि जूल हमको रिमूव करना है। बेसिकली हम जूल ही रिमूव करने वाले थे ना, तो हमारे आंसर आएगा आर का अगर कैलोरीज में लेंगे हम तो 2 कैलोरी हम डायरेक्टली ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ये 3 टाइप से, बट जनरली आप कौन सा वाला यूज करो, आर इन टर्म्स ऑफ SI। ये 2 यूनिट्स मैंने आप लोगों के इंफॉर्मेशन के लिए बताया। इन सम केसेस यू विल यूज, बट इट इज अ रेयर केस वेर यू आर गोइंग टू यूज इट वैल्यू ऑफ आर इन डिफरेंट मेथड। एंट्रेंस के टाइम पे आप यूज कर सकते हो फॉर श्योर। स्टूडेंट्स, लेट्स चेक विद द कंबाइंड गैस लॉ, कि पूरा गैस लॉ का कंबाइंड हमने अभी एक फॉर्मूला निकाला है गैस लॉ का, दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT। तो अगर हम इसको कंबाइंड वे में लिखेंगे तो T को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूं, देखो PV अपॉन T इज इक्वल्स टू nR। n will be 1 and R is also, and R is a constant, you all know। So ये टर्म पूरा कांस्टेंट हो गया, तो चेंज क्या होता रहेगा, सिर्फ PV अपॉन T, राइट। तो ये चेंजिंग वैल्यू, राइट, दिस डॉटेड पार्ट इज अ चेंजिंग टर्म, राइट। तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर हमारे पास 2 प्रेशर, 2 वॉल्यूम, 2 टेम्परेचर दिया है, ये तो कांस्टेंट टर्म है, अपने आप हम लिख सकते हैं। सो व्हाट इट विल बी कमिंग एज P1 V1 इफ वी हैव प्रेशर 1, volume 1 and temperature 1, and other pressure that is P2, other volume V2 and other volume other temperature T2, these two are equal। okay,
कांस्टेंट है ना, तो ये सारी वैल्यूज इक्वल साइन पे जाएंगी। आप लोगों को समझ में आ रहा है? जैसे हम हर चीज में कर रहे थे इतने टाइम से कि अगर कांस्टेंट है तो सो ऑन करके n नंबर्स तक हम उसको इक्वल कर सकते हैं। सेम मैंने वही किया, nr इज अ कांस्टेंट हियर, तो मैंने p1 v1 अपॉन t1 इज इक्वल्स टू p2 v2 t2 को ले लिया और इसको कांस्टेंट टर्म दे देंगे विच इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। सो अगर हमारे पास ज्यादा वैल्यूज होंगी तो हम कंबाइंड गैस लॉ के मेथड से उनकी भी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। ओके, चेक एन एक्सप्रेशन फॉर मोलार मास। सो हमारा फॉर्मूला वही है, pv इज इक्वल्स टू nRT, राइट? ये हमारा फॉर्मूला। तो अगर हम n को वहां छोड़ते हैं, बाकी सारी चीजों को लिखते हैं, तो pv इज अपॉन RT इज इक्वल्स टू n, राइट? लेट्स नेम इट एज एन इक्वेशन 1. Now you all know that n is equals to small m upon capital M. ये पता है आप लोगों को? मैं क्या करूंगी, इसको इक्वेशन 2 दूंगी। Now what I am going to do is I will substitute equation 2 in equation 1. What I am doing? Substitute equation 2 in equation 1. What I will get answer is PV upon RT is equals to small m upon capital M, right? इतना मिला, इसको मैं इक्वेशन 3 देती हूँ। देखो हाँ, 3 है PV upon RT is equals to small m upon M. आपको वैल्यूज पता है, P प्रेशर, V वॉल्यूम, R गैस कांस्टेंट, T टेम्परेचर, दिस इज मास ऑफ अ कंपाउंड और अ मॉलिक्यूल, फिर कैपिटल M इज द मोलार मास। सो हमें मोलार मास का ही एक्चुअली एक्सप्रेशन ढूंढना, राइट स्टूडेंट्स? सो हम M को इस साइड शिफ्ट करेंगे। देखो अभी मैं क्या करूं, M को इस साइड शिफ्ट करूं, P को इस साइड ले लूं। ये किया मैंने। अब मैं नेक्स्ट इक्वेशन में क्या करूंगी, ये RT को भी वहां शिफ्ट कर दूं, क्योंकि मेरे को सिर्फ ये जो RT है वो वैसे का वैसे ही वहां पे था ना, तो मुझे सिर्फ मोलार मास का इक्वेशन चाहिए। तो ये RT इज नॉट ऑफ माई यूज। व्हाट आई विल डू इज कैपिटल M इज इक्वल्स टू mRT अपॉन PV, equation number 4. So this is my equation for a molar mass of a gas. Okay? ये समझा मैंने, खाली टर्म्स को एक्सचेंज किया। पहले n को सेपरेट किया, n के अंदर हमने स्मॉल m अपॉन कैपिटल M वाली वैल्यू डाली, उसके बाद सिर्फ शफलिंग करते गए, हम चेंजेस करते गए। मुझे सिर्फ मोलार मास चाहिए था, तो मैंने सिर्फ मोलार मास को एक साइड रखा, बाकी सारी चीजों को उस साइड शिफ्ट किया मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के फॉर्म में। Check with the relation between density, molar mass and pressure. I know आप लोग रिलेशन चेक करते 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 बोर हो गए होंगे, बट व्हाट कैन वी डू, राइट? स्टडी का पार्ट है तो करना ही पड़ेगा, राइट? सो लेट्स चेक विथ इट। नाउ सेम फॉर्मूला, PV इज इक्वल्स टू nRT। ये फॉर्मूला आप लोगों को बाय हार्ट हो जाना चाहिए, अब तक इतनी बार यूज करें एंड फर्दर और भी यूज करने वाले हैं। अब अगर हम इसको रीअरेंज करेंगे तो हम इसको ऐसे भी तो रीअरेंज कर सकते हैं ना, n अपॉन v इज इक्वल्स टू r p अपॉन RT। RT को यहाँ पे शिफ्ट कर दो, वॉल्यूम को यहाँ पे बिलो शिफ्ट कर दो, इतना ही किया, राइट? And we know that n is equals to m upon molar mass. ये चीज भी हमें पता है, राइट स्टूडेंट्स? n is equals to m upon m. तो अगर इक्वेशन 1 में मैं ये सब्स्टिट्यूट करूं तो सब्स्टिट्यूट 2 in equation 1, what I am getting is m capital M capital V upon P upon RT. I know that
मास अपॉन वॉल्यूम। अब ये m छोटा है, ये v है, तो मास अपॉन वॉल्यूम वाला टर्म आ गया। m अपॉन v, आई नो दैट इट इज द फॉर्मूला फॉर डेंसिटी, राइट स्टूडेंट्स। तो ये इक्वेशन 3 है अगर, तो ये इक्वेशन 4 है। तो अगेन सब्स्टिट्यूट 3 in equation 4, what we get it as d upon capital M is equals to P upon RT, right students? मिलता? अब हमें इसको फिर से रीअरेंज करना है, तो इसलिए मैं इसको अभी इक्वेशन 5 देती हूँ और फिर से कंटिन्यू करती हूँ। 5 क्या था हमारा? d अपॉन m इज इक्वल्स टू p अपॉन RT, ये इक्वेशन 5 था हमारा। अब इसमें मेरे को मोलार मास को एक साइड लेना है, तो मैं क्या करूंगी, ये m को वहां शिफ्ट करूंगी। देखो पहले अभी मैं फर्स्ट स्टेप में क्या कर रही हूँ, इज इक्वल्स टू मोलार मास अपॉन RT, सिर्फ p और m को मैंने शिफ्ट किया। अब मुझे सिर्फ मोलार मास एक साइड चाहिए और RT इस साइड चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, dRT अपॉन P इज इक्वल्स टू m। फॉर्मूला कुछ ऐसा होता है, मोलार मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू रेट ऑफ गैस कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर अपॉन प्रेशर। तो इस इक्वेशन से मैं ये बोल सकती हूँ कि m is directly proportional to density and inversely proportional to pressure, right students? I can say this. So हमें सिर्फ रिलेशन बताना था कि डेंसिटी, मोलार मास एंड प्रेशर में क्या रिलेशन है। तो we can say that the molar mass is directly proportional to density, molar mass is inversely proportional to pressure। तो ये दो को मैंने कंबाइंड ही बोला, दैट इज एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, एन तो हमेशा से हमारा कांस्टेंट ही रहता था, तो एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर एंड दिस रेट ऑफ गैस इज ऑल्सो कांस्टेंट ओवर है। तो ये जो कांस्टेंट टर्म है अगर उसको रिमूव किया जाए तो कैसे हो सकता है हमारा इक्वेशन, प्रेशर ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is directly proportional to its density. Pressure of a gas just wait a moment. Molar mass is directly proportional to density and inversely proportional to pressure. Okay, simple definition बोलते हैं। Students, I hope you are clear with what we have studied in today's lecture. If you have any doubt, just let me know in the comment section, or you can ping me on my personal one. Students who have not yet subscribed our channel, subscribe our channel, and if you have not watched any of the lecture of this chapter, you can watch through the link provided in the description box.